A very good morning, 8th class students. Welcome to your social science class, and myself, Miss Deepthi from Dip Scroll Park. In today's lecture, we are going to do the SPL Chapter 5, Judiciary and the Role of Police. And in today's lecture, we are going to discuss about the role of police. As in our previous lectures, we have discussed about the judiciary in India, and in this we have read about the Supreme Court and its subordinate courts, the functions of the Supreme Court, and why we need the judiciary, what is the main function of the judiciary. Such important information we have collected from the this chapter. So in today's lecture we are going to discuss about the role of police. So one thing is there, whenever we all often think about that, who helped the government to run the government very smoothly, and who helped them to do so. uh, the main work of the government is to keep us safe and comfortable life. So the in this to do this exercise, to provide us such good environment, the government take the help of a force named as police force. Police is the force which help the government to maintain the law and order situation in the country, as well as they have also tried to solve the crime which happen in the city, in the state. So this is the main work of the government, of the police, to maintain the law and order in the state, and also solve the crime in the society. ठीक है, and they also prevent, police also prevent us from the crime and maintain public order. क्राइम से हमें बचाती भी है और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए भी करती है। तो ये सब कुछ हम डेली देखते भी हैं। वी डे टू डे लाइफ में हम भी सी कि भी पुलिस, आप ट्रैफिक में जाते हैं तो पुलिस आपको ट्रैफिक को मेंटेन करके रखती है कि भी आप ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली माने, जो लिख लिख बताए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। एंड पुलिस हम लोग को इस चीज़ के लिए भी कहती है, करवाती है कि भी आप अगर कहीं पर आजकल जैसे कोविड सिचुएशन चल रही हैं, तो वही कोविड के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें हम लोग। तो ये भी पुलिस के ऊपर ही काम दिया गया था। ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स आर देयर, तो हम वो उस टाइम पे भी हम पुलिस वालों को देखते हैं, दे आर ऑन द ड्यूटी, बिकॉज कि भी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन ना आ जाए जिसके कारण कॉमन पीपल को इफेक्ट पहुंचे। तो ये सब कुछ काम पुलिस देखती है, गवर्नमेंट की हेल्प पुलिस करती है। सो पुलिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स in the hand of the government. So what is the role of the police? It is the, as I have told you, the main work of the police is to maintain the law and order in the state, and it is also when there is a crime, उस crime को solve करना, और पर जिसने crime किया है, जो क्रिमिनल है जिसको हम कह सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिलवाने में पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, पुलिस के पास में पावर नहीं है किसी को पनिशमेंट देने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वी शुड नो अबाउट इट, दैट पुलिस कैन नॉट गिव पनिशमेंट टू एनीबडी। पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन, police can have the power to solve the crime, but they have no power to give to declare somebody as a criminal, or to give him a punishment. This power is in the hand of judiciary only. So here in your book it is written that the main function of the police is prevent and solving the crimes, arrest the person involved in the crime, feeling and the investigation charge sheet. Now the what is a charge sheet? Charge sheet means जो FIR हमने लॉन्च करवाई थी, as we have read in the पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि भी FIR लॉन्च करनी पड़ती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो, उसको फिर उसको देखते हुए वो चार्जशीट हो जाती है। चार्ज करना मतलब किसी को दोष लगाना हो जाता है, तो वो दोष को देखा जाता है कि भी जिसको दोषी बनाया गया उसको, उसने दोष किया भी है, उसने ये गलती की भी है कि नहीं की है,
या ये सारा इन्वेस्टिगेट करना, तो वो पूरा आता है चार्जशीट में। देन उसके बाद मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वी हैव डिस्कस कि भी जैसे कोविड टाइम में पुलिस ने, हमने देखा ही है कि पुलिस ने किस तरीके से सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करके रखा हुआ था। कर्फ्यू हमारे लिए था, लेकिन पुलिस वालों के लिए कोई कर्फ्यू नहीं था, देवर ऑन देयर ड्यूटी। तो हम लोग घरों में सेफ थे, बट देवर इन द फील्ड, और लोगों को समझा रहे थे कि कोविड से कैसे रहें। तो ये मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करने का सबसे बड़ा साधन था उनके पास में। और उसके बाद में टू रेगुलेट ट्रैफिक, वी हैव सीन सो मेनी टाइम, पुलिस वाले खड़े होते हैं, बारिश हो, धूप हो, अंधेरी हो, वो ट्रैफिक का कंट्रोल करने में लगे होते जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सो दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ द पुलिस। सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हराइकी कैसे होते हैं, हराइकी मीन्स सीनियर मोस्ट कौन सा होता है, उसके बाद कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टेट आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एज वी नो, and each district police administration is headed by the superintendent of police, whom we are known as called SP. Then district is further divided into circles, and there are minimum 5 to 6 circles. Each circle is controlled by deputy superintendent of police, means DSP. Third is each circle has 10 police station or thanas, and the thanas are under the control of inspector of police, जिसको हम इंस्पेक्टर साहब बोल देते हैं। फिफ्थ में आ जाता है दैट इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस इज असिस्टेड बाय सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल। ठीक है, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर के नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नीचे होता है आपका हेड कांस्टेबल्स। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैज कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि दिल्ली हुई, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु है, तो वहाँ पर हम लोग को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या करना, अब वो इतना बड़ा सिटी सेल्फ एक बहुत बड़ा मतलब कि एक स्टेट के जैसे ही हो जाता है, बहुत बड़ी सिटी होती है मेट्रोपॉलिटन होने, तो वहाँ पे पुलिस कमिश्नर होते हैं, वहाँ पे पुलिस कमिश्नर होते हैं, और पुलिस कमिश्नर के नीचे असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, देन डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, देन उसके बाद में सीधी फिर हराइकी इसी ढंग से नीचे की आ जाती है। गॉट इट। तो हेड कांस्टेबल्स के नीचे आपके कांस्टेबल्स आते हैं, कांस्टेबल्स उसके बाद सिपाही एंड सिपाही। दिस इज द हायरार्की ऑफ द पुलिस की डिपार्टमेंट ऐसे वर्क करता है। देन वो हाउ इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम कैरिड आउट, इन्वेस्टिगेशन कैसे कैरिड आउट की जाते हैं, एज वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम कि FIR सबसे पहली बात होती है, FIR लॉन्च होती है। FIR लॉन्च होने के बाद में पुलिस उस जहाँ पे क्राइम कंडक्ट हुआ है वहाँ पर जाती है, वहाँ के सारे चीज़ों को वो इन्वेस्टिगेट करती है, उसको देख के उसको सारे वहाँ से सारे सबूतों को इकट्ठा करती है, एंड उसके बाद में जो उनको लगता है कि भी जिसने क्राइम किया है, फिर उसको वो अरेस्ट करती है, एंड देन सबूत विद द उसके साथ में उसको वो लेके जाती है, एंड देन उसको क्रिमिनल को अरेस्ट करके कोर्ट के आगे पेश करती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज आता है, क्रिमिनल्स की भी एक फंडामेंटल राइट है, क्रिमिनल्स की भी एक फंडामेंटल राइट है। उनका क्या राइट है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि दे हैव टू दे हैव द राइट टू नो द अरेस्ट। अब जिसको वो पकड़ रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि आप किसके लिए अरेस्ट किए जा रहे हो, क्या कारण है, क्या आप पे दोष लगाया क्या जिसके कारण आपको अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि किस आज़ादी सभी का अधिकार है। वी आर तो फ्रीडम इज बर्थ राइट आवर, तो फिर वो फ्रीडम आपको, जब हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, तो उसको बताना पड़ता है कि आपकी फ्रीडम को क्यों, आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसके बाद में आता है दे शुड नॉट बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑल्सो। उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं आप कर सकते, मारकूट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर लॉजिंग द FIR अ पर्सन शुड बी टेकन टू द कोर्ट। लॉडिंग ऑफ FIR होने के बाद में जो पर्सन है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है उसको
कोर्ट के सामने पेश करना होता है। और उस पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसको कोर्ट के सामने 24 आवर्स के बीच बीच में करना होता है। अब ये 24 घंटे कब से होता है? वो 24 घंटे में ट्रैवलिंग भी है अगर, तो वो ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड होगी। मान लो जैसे कि जलंधर में किसी पेश उसको कोर्ट में लेके आना है और उसने दूर से आ रहा है कहीं से, तो वो 24 घंटे के अंदर ही उसकी जो ट्रैवलिंग होगी जलंधर पहुंचने तक की, वो ट्रैवलिंग भी उस 24 घंटे के अंदर इंक्लूडेड होगी, यानी कि उसके अंदर 24 घंटे वो ट्रैवलिंग के साथ में ही गिना जाएगा। तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कोर्ट के सामने पेश होकर और उसकी पेश करना पड़ता है, और वो भी फिर उसको बताना पड़ता है, कोर्ट को बताना पड़ता है कि इस बंदे को हमने अरेस्ट किया है, इसके ऊपर ये हमने दोष लगाए हैं। देन जो कोर्ट उससे पूछती है कि भी आपने किया कि नहीं किया, उसकी फिर बयान होते हैं जिसको अरेस्ट किया गया, एंड देन उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको आगे फर्दर जेल भेजा जाए या ना जाए, जो कि मोस्टली कोर्ट भेज देती है अगर सबूत हो तो। देन द पुलिस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट टू द एक्यूज। मैंने आपको बोला ना कि पुलिस के पास में किसी को भी पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। तो ये थे हमारा द रोल ऑफ द पुलिस, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। सो दैट इट्स फॉर आज के लिए इतना ही। वी आर गोइंग टू सी यू सून। टेक केयर। गुड बाय।